پاسٹر نوید ملک خداوند کی عظیم اور بین الاقوامی شہرت یافتہ خادم ہیں۔ آپ کی اردو اور انگریزی میں کتب، عہد جدید کی تفسیر، یوٹیوب پر 1000 کے قریب پیغامات، کئی مشکل ترین سوالات کے جوابات اور بائبل مقدس کے مفت آن لائن کورسز کے لیے وزٹ کیجیے www.newlifeinstitute.org۔ مسیح خداوند کے مبارک اور جلالی اور افضل ترین نام میں آج شب پھر آپ تمام ناظرین اور سامعین کی خدمت میں آداب بجا لاتا ہوں اور خداوند کریم کا انتہائی ممنون ہوں، شکر گزار ہوں کہ آج پھر یہ خوبصورت لمحات میری زندگی میں میسر آئے کہ ہماری اسکائپ آئی ڈی پر کی جانے والی پرستش، دعاؤں اور میٹنگ کے پریزائڈ کیے جانے کے وسیلہ سے میں برکت پاؤں، اور پھر خداوند کے اس زندگی بخش کلام کے ذریعہ سے بھی میں برکت پاؤں، اور پھر اس برکت کو میں آپ کے ساتھ بھی شیئر کرنے والا ہو سکوں۔ اس بات کے لیے میں خداوند کا شکر اور خداوند کی تعریف کرتا ہوں۔ زبور کی کتاب کا ہم مطالعہ کرتے ہیں اور 120 سے 134 مزامیر کا یہ جو سلسلہ تھا اس کو ہم نے مکمل کیا ہے، اور بہت کچھ راز اور مکاشفات ان مزامیر میں ہم نے دیکھے اور سیکھے ہیں، اور اب ہم اس کے بعد یعنی زبور 135 پر ہے، اور اس زبور کی آج میں صرف پہلی 3 آیات آپ کے ساتھ مل کر سیکھوں گا، اور یقین محکم ہے کہ ان آیات کے وسیلہ سے بھی خداوند آج پھر سے مجھے اور آپ کو برکت دینے کے لیے مکمل طور پر تیار ہے۔ یاد کیجئے کہ ہم نے ہیکل کی زیارت کے لیے جو گیت کارواں کی صورت میں یا قافلہ کی صورت میں خدا کے گھر تک جانے کے لیے گائے جاتے تھے، ان 15 مزامیر کے سلسلہ کے بعد اب ہم ایک ایسے سلسلے میں داخل ہوتے ہیں جہاں یہوہ خدا کے لوگ ستائش، حمد اور پرستش کرتے ہیں، اور یہ زبور یعنی 135 پورے کا پورا زبور یہوہ کی ستائش اور پرستش اور تمجید کرنے سے متعلق ہے۔ اس زبور کی خوبصورتیوں میں سے ایک یہ ہے کہ ان 21 آیات میں تقریباً تمام تر آیات خداوند کے کلام سے کہیں نہ کہیں سے لی گئی ہے۔ یہ انفرادیت ہے اس زبور کی۔ مثلا زبور 134 کی صرف 3 ہی آیات ہیں، میں 135 سے پہلے کی بات کر رہا ہوں، اور ان 3 آیات میں اے خداوند کے بندو، آؤ سب خداوند کو مبارک کہو، تم جو رات کو خداوند کے گھر میں کھڑے رہتے ہو، رات کو خداوند کے گھر میں کھڑے رہتے ہو، کہاں اور کب، کیسے؟ آگے، مقدس کی طرف اپنے ہاتھ اٹھاؤ اور خداوند کو مبارک کہو، اور پھر خداوند جس نے آسمان اور زمین کو بنایا سیون میں سے تجھے برکت بخشے۔ یہ 3 آیات
ज़बूर 134 की है। जहन में रखिएगा कि इन 3 आयात में हमने देखा कि खुदावंद के बंदों, सर्वेंट्स ऑफ द लॉर्ड, खुदावंद के खादमों की तरफ कौम बनी इसराइल और लावियों की यहां पर बात हो रही है। इस ज़बूर में खुदावंद को मुबारक कहो, उसकी सताइश और उसकी परस्तिश करो। यानी कौन? तुम जो रात को खुदावंद के घर में खड़े रहते हो। अब 135 ज़बूर की पहली 3 आयात, इन बातों को ज़हन में रखिएगा। यह सिर्फ एक मिसाल है, एग्जाम्पल है कि कैसे बाइबल मुकद्दस के दीगर हिस्स से आयात ली गई और 135 ज़बूर को ज़बूर नवीस ने पाकरू की तहरीक से तरतीब दी है। 135 के शुरू में खुदावंद की हम्द करो, खुदावंद के नाम की हम्द करो, ए खुदावंद के बंदो। हमने 134 की पहली आयत में क्या देखा? ए खुदावंद के बंदो। अब 135 में भी ए खुदावंद के बंदो, उसकी हम्द करो। तुम जो खुदावंद के घर में, हमारे खुदा के घर की बारगाहों में खड़े रहते हो, खुदावंद की हम्द करो, क्योंकि खुदावंद भला है। उसके नाम की मदह सराई करो कि यह दिल पसंद है। आपने देखा, चूंकि मैंने सिर्फ आज 3 आयात पर ही थोड़ी सी रोशनी डालनी थी, यह एक एग्जाम्पल है कि कैसे बाकी अहद अतीक में से रेफरेंसेस, हवालाजात को लेकर इस 135 ज़बूर को ज़बूर नवीस ने तरतीब दी है। तो गोया यह एक अलग से इनफरादियत है ज़बूर 135 की। इसका मुसन्नफ मैं जानता हूं और वो मुसन्नफ खुदा बजाते खुद है। इंसानी मुसन्नफ के एतबार से मुझे मालूम नहीं, क्योंकि उलमाए बाइबल इस मामले में खामोश है। लेकिन जो बात मैंने पहले की वो 100% सही है, क्योंकि पूरे खुदा के कलाम का मुसन्नफ, जिसका कलाम है यानी खुदा, वो बजाते खुद इसका मुसन्नफ है। मैंने पहले कहा कि इस पूरे ज़बूर में खुदा की हम्द, खुदावंद की सताइश, उसकी परस्तिश और उसकी तारीफ और उसको मुबारक कहने के लिए मदऊ किया जाता है, दावत दी जाती है। और वैसे भी आप यसाया नबी का सहीफा, उसका 43 यानी 43 बाब और उसकी 21 आयत में इस बात को देखते हैं कि यहोवा खुदा ये रीजन बताता है, वजह बताता है कि मैंने इंसान के बनाने, उसके खल्क करने के पीछे मकसद क्या रखा था। और वो ये कि मैंने इंसान को इसलिए बनाया कि वो मेरी हम्द करे। कितनी खूबसूरत बात है और कितनी अजीम बात है। और बहुत सारी बातें आज इन 3 आयात में मेरे सीखने के लिए हैं और मुमकिन है कि आपके सीखने के लिए भी हों, बशर्ते कि हम खुदावंद की आवाज के लिए अपने आप को खुला पा रहे हूं। तो इन पहली 2 आयात में, 135 की पहली 2 में, जब यह कहा गया कि खुदावंद की हम्द करो, जो हमारे पास अंग्रेजी बाइबल है, वहां खुदावंद के लिए जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ है वो कैपिटल लेटर्स में लॉर्ड, जो हमारे पास इस्तेमाल हुआ है, लेकिन इब्रानी जबान में वहां पर यहोवा
का लफ्ज इस्तेमाल हुआ, और हम्द के लिए जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ, यानी तारीफ के लिए, स्ताइश के लिए, वो हालेलुया है। तो आप खुद अंदाजा कीजिए कि जब अंग्रेजी जबान में लॉर्ड का लफ्ज आया है, या हम खुदावंद का लफ्ज यहां पर पढ़ते हैं, तो एक आलम ने यह कहा है, बल्कि मुझे खुद मिलने का इत्तेफाक हुआ, और मैंने कहा, यह बात इससे पहले भी मैं बता चुका हूं, और वो ये कि जी, जब यहोवा खुदा का नाम ओरिजिनली असल मतन इब्रानी में मौजूद था और है, तो क्यों नहीं वो यहोवा नाम ही यहां पर रखा गया? क्यों तर्जमा किया गया और लॉर्ड और खुदावंद के अल्फाज इस्तेमाल किए जा रहे हैं? क्या रीजन है? चूंकि मैं बहुत सारी बातें नहीं जानता खुदा के कलाम के बारे में, तो जो नहीं जानता, मैं दूसरे खुदा के लोगों से पूछता हूं। उसने यह कहा कि जहां तक मेरा इल्म है इसके बारे में, वो ये कि यहोवा जो नाम है, एक तो बात यह है कि हमें सही तलफ़्फ़ुज़ क्या है, याहवे है या यहोवा है, हमें सही तलफ़्फ़ुज़ नहीं आता। यह क्लियर कट बात है। उस वक्त इस नाम को किस तरह से पुकारा जाता था, हमें मालूम नहीं है। अगर यह नाम लिया जाता था तो कैसे, थोड़ी सी बात करूंगा, लेकिन उसने कहा कि हमें मालूम नहीं कि दुरुस्त इसकी प्रोनाउंसिएशन क्या है। लेकिन एक बात उसने कही जो मुझे भाई है, यानी भली लगी, और वो ये कि बनी इस्राइल यहूदी लोग जब यहोवा का लफ्ज लिखते या तौरात और सहाइफुल अंबिया और जबूर की किताब में जहां यह नाम यहोवा आता, ओ किस कदर ताजीम से वो इस नाम के साथ पेश आते थे, मैं अपने लफ्जों में बयान करने से आजिज हूं। और कई ये कहते हैं कि इस नाम को स्किप कर जाते थे, ये जानते हुए कि मैं इसका गलत या बहालत नापाकी में मैंने नाम लिया तो मैं गुनाहगार ठहरूंगा, और मैं नहीं ठहरना चाहता। जिस सबब से वो जो यहोवा नाम है, चूंकि वो लेना बहुत मुश्किल था, ये नाम लेना, पुकारना, ये वजह है कि वहां तर्जमा के तौर पर द लॉर्ड या हमारे पास खुदावंद तर्जमा के तौर पर अल्फाज आए हैं। तो इस नाम की पाकीज़गी और तकदीस और मुकद्दस होने के सबब से इस यहोवा नाम को खुदा ने खुद भी कहा, मेरा नाम यहोवा है, लेकिन इसी नाम से वो पहचाना जाता रहा, आज भी पहचाना जा रहा है। लेकिन बात यह है कि यहोवा नाम जो उसका असल तलफ़्फ़ुज़ है हम तक नहीं पहुंचा, और अच्छा है कि नहीं पहुंचा, क्योंकि अगर वो नाम हम ले ना सकते या लेते तो फिर हम तकफीर करते, तो मैं समझता हूं यह मुनासिब नहीं था। लिहाजा लॉर्ड या खुदावन हमारे लिए मुनासिब है। मैं क्यों यहोवा
नाम लेता हूं? इसलिए कि मैं उस दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ को जिसको उलमा भी नहीं जानते, मैं उस दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ को नहीं अदा कर सकता। लेकिन जो हमारे पास उर्दू बाइबल में, यहां नहीं लेकिन और जगहों पर जहां यहोवा नाम लिखा है, मैं उसी का तलफ़्फ़ुज़ यहां पर करके पेश करता हूं। एक और बात जो यहां हमें नजर आती है कि इस यहोवा खुदा की हम्द के लिए ज़बूर नवीस तैयार है। देखिए, जो बंदा खुद परस्तश नहीं करता, जरूरी नहीं कि हारमोनियम पर ही हो तो अच्छी बात है, बहुत खूबसूरत बात है, जरूरी नहीं कि वो जमात में ही परस्तश करे। वाल अगर कर सकता हो तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन अगर कोई मेरी तरह हो जो ये कहे कि जी मुझे अकेले में परस्तश करना ज्यादा भला लगता है, क्योंकि मेरी आवाज दुनिया को पसंद नहीं आएगी लेकिन खुदा को पसंद आएगी, तो वो अकेले में परस्तश करता है। तो जो शख्स अकेले में या इज्तमाई तौर पर जमात में परस्तश नहीं करता, हम्द नहीं करता, शुक्रगुजारी नहीं करता, तारीफ नहीं करता, सना नहीं करता खुदावंद की, वो दूसरों को ऐसा करने के लिए दावत दे भी नहीं सकता। जो बंदा खुद दुआ नहीं करता, वो दूसरों को दुआ के लिए तहरीक दे भी नहीं सकता, क्योंकि यह शख्सी तजर्बा नहीं है। और जिन बातों का शख्सी तजर्बा है, उनका हम एक दूसरे से इजहार करते हैं। यूं महसूस होता है कि ज़बूर नवीस जानता था कि यहोवा की परस्तश और उसकी तारीफ और उसकी सताइश और उसकी हम्दो सना करना किस कदर अजीम और माना खेज है। और चूंकि वो खुद खुदा की सताइश और परस्तश करता था, जिस सबब से बेशतर मज़ामीर खुदावंद की परस्तश, खुदावंद की हम्द और खुदावंद की सताइश पर ही मबनी है। इस ज़बूर में आज तो नहीं, लेकिन कल से जिन खुदा के खुदाम के साथ मिलकर हम सीखते हैं या सीखेंगे, वो जो मौजूद होंगे, वो जानेंगे कि ज़बूर नवीस क्या क्या वजूहात पेश करता है, क्या क्या रीजन है कि वो खुदावंद की सताइश और खुदावंद की परस्तश करता है। लेकिन सिर्फ एक बात जिसका मैं जिक्र करता चलूं, चूंकि पूरे ज़बूर में वो उभरती हुई नजर आती है, और वो ये है कि चूंकि बनी इसराइल को खुदा ने माजी में कई तरह की गुलामियों से रिहाई बख्शी, छुटकारा बख्शा, आजाद किया, इसलिए वो खुदावंद अपने खुदा की सताइश कर रहे और माजी में मिली हुई इस रिहाई के लिए खुदावंद ही की तारीफ करते हैं, क्योंकि वो जानते थे कि ये मखलसी और रिहाई सिर्फ और सिर्फ खुदावंद हमारे खुदा की तरफ से है। इस ज़बूर में एक दफा फिर आयात को देखिएगा, कहता है खुदावंद की हम्द करो। नंबर 2, खुदावंद के नाम की हम्द करो, दोबारा आया है। खुदावंद के बंदो उसकी हम्द करो, और ये करो और करो और करो की बात हो रही है। एक तो ये
कि वो बजाते खुद खुदावन की हम्द करता है, और दूसरी बात यह कि इन आयात में वो दूसरों को भी मदऊ करता है, दावत देता है कि आओ यहोवा की हम्द करो और उसके हुजूर हालेलुया कहो, क्योंकि वही तारीफ के लायक है। एक तो उसका शख्सी तजुर्बा था खुदावन की हम्द करने का, और वो जानता भी था कि मैं खुदावन की हम्द कर रहा हूं तो क्यों कर रहा हूं। उस वक्त मैं थोड़ा सा हैरान होता हूं कि जब कई लोग प्रस्तश में गीत गाते हैं और ईमानदार हैं, मसीह में हैं, नई पैदाइश का तजुर्बा पाया हुआ है बकौल उनके, और गीत गा रहे होते हैं, मैं ना बीना जग में फिरता राह कौन दिखाए, यानी अभी तक लगता है नाबीना ही है। और यह फिजिकल नाबीनाई की बात नहीं है, यह रूहानी इस गीत में बीनाई या नाबीना होने की बात हो रही है। और फिर इसके साथ साथ कई और गीत और मजाबीर हैं, स्पेशली गीत जब हम गाते हैं तो हम टोन और तर्ज को लेते हैं, मैसेज को बहुत कम लेते हैं कि मैसेज क्या है। और यहां वो जानता था कि मुझे खुदावन की सताइश और खुदावन की परस्तश करना है, और उसके रीजन भी वो जानता था कि मैं क्यों कर रहा हूं। और फिर वो दूसरों को दावत देता है कि वो भी इस परस्तश में शरीक हूं। सवाल यह है कि क्या खुदा ने सिर्फ कौम बनी इस्राएल के लिए ही बड़े बड़े काम किए? अगरचे किए खुदा ने, वो खुदा की चुनिंदा कौम है, लेकिन क्या खुदावन ने मेरी जिंदगी में और आपकी जिंदगी में बड़े बड़े काम नहीं किए? किए कि नहीं किए, सोचें। और अगर खुदावन ने बड़े बड़े काम किए हैं और छोटे काम भी किए हैं, तो सिर्फ यह जबूर गाना कम ओदे हत्थां ते सबो जलाली सारियां नूं दसो, ये कहना और बात है, लेकिन क्या वाकई हम उन अजीब कामों का बयान दूसरे लोगों से करते हैं और दूसरे लोगों को मदऊ करते हैं, दावत देते हैं कि मैं इसलिए शादमान हूं कि मसीह पर ईमान लाने के वसीला से मुझे गुनाहों की मुआफी और हमेशा की जिंदगी मिली है। और अगर आप भी उस शादमानी, उस मसरत को हासिल करना चाहते हैं तो मसीह खुदाबंद के पास आ जाएं। क्या हम दूसरों को मदऊ करते और दावत देते हैं कि यहोवा खुदा की हम्द करो? यह सवाल है मुझसे भी और आपसे भी। हमारी कोई भी बाइबल स्टडी फजूल जाएगी अगर हम अपनी जिंदगी में उस बाइबल स्टडी का अतलाक न करें और देखें कि मैं रूहानी एतबार से इस वक्त कहां पर हूं और मुझे क्या करने की जरूरत है। फिर वो कहता है, एक तो ये कि ए खुदावंद के बंदो, पता नहीं कितनी बार हम ऐसे ही खुदावंद के बंदो, खुदावंद की हम्द करो, लेकिन जो बंदो का लफ्ज है ना, वो बंदा से निकला है। बंदो ये प्लूरल सीगा जमा है, ओ खुदा के बंदो, और बंदा से मुराद गुलाम के हैं। और गुलाम अपने आका और अपने मालिक का इतना वफादार होता है कि
इस्तिलाही तौर पर कहूंगा कि सांस भी अपनी मर्जी से ले नहीं सकता था। ओ मेरे भाइयों और बहनों, ओ खुदा के लोगों, बंदों और बंदियों, उसने कहा कि अब से मैं तुम्हें गुलाम नहीं कहूंगा बल्कि दोस्त कहूंगा। और अगर एक गुलाम अपने आका और मालिक का, जिसने उसको दबा कर रखा हुआ था, इतना ज्यादा फर्मा बरदार था, तो फिर मैं और आप अपने खुदावन के, जिसने हमसे प्यार किया, शफकत रहम हम पर किया, उसके कितने ज्यादा फर्मा बरदार हैं। ये एक दूसरा सवाल था जो मुझे और आपको अपने आप से पूछने की जरूरत है। ए खुदावंद के बंदो, उसकी हम्द करो। और दूसरी आयत, तुम जो खुदावंद के घर में, हमारे खुदा के घर की बारगाहों में खड़े रहते हो। तुम जो खुदावंद के घर में से मुराद खुदा की बारगाहों में, खुदा की हजूरी में। बाय द वे, इस आयत के मुताबिक वो खुदा के लोग जो हैकल में या उससे पहले खैमा इज्तिमा में खिदमत गुजारी का काम किया करते थे, उनकी तरफ भी, काहिनों और लावियों की तरफ भी, सरदार काहिनों की तरफ भी, और वो तमाम लोग जो खुदा के हुजूर अपनी ऑफरिंग्स, अपने नजराने, कुर्बानियां अदा करने के लिए खुदा की हुजूरी में सुबह शाम रात खड़े रहते थे, उनकी बात हो रही है। और मैं समझता हूं 2022 में बनी इसराइल के वक्त जितनी खुदा के हुजूर खड़े रहने की जरूरत थी, आज उससे कहीं ज्यादा बढ़कर है। और बात यह नहीं है कि वो कबड की वजह से हमें खुदा के हुजूर आना है। नहीं नहीं नहीं, ये हालात ठीक नहीं है, ओ मुसीबत में फंस गए हैं, ओ ये हो गया, ओ वो हो गया। नहीं 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 नहीं, इस बात के लिए कि माजी में मेरे खुदा ने मेरी जिंदगी में क्या क्या काम किए हैं, और वो बदलेगा नहीं। आइंदा भी वो उन कामों को कंटिन्यूअसली हमारी जिंदगी में जारी रखेगा, बशर्ते कि हम उसको काम करने दें। तो ए खुदावंद के बंदो, तुम जो खुदावंद के घर में, उसकी बारगाहों में खड़े रहते हो, तीसरी आयत, उसकी हम्द करो। क्यों? इसलिए कि खुदावंद भला है। उसके नाम की मदा सराई करो कि यह दिल पसंद है। खुदावंद भला है। मैं भी दुआ में यह लफ्ज कहा करता हूं, खुदावंद आप भले हैं। भला के लिए लफ्ज अंग्रेजी में गुड इस्तेमाल हुआ है, और शायद गॉड इज गुड, या चूंकि यहोवा खुदा गुड है, पॉसिबल इसीलिए उसके लिए गुड से गॉड का लफ्ज भी इस्तेमाल हुआ हो। सिर्फ एक इशारती तौर पर बात कर रहा हूं। खुदा भला है, मेहरबान है, शफकत और मोहब्बत और रास्ती का मंबे है। वो हमें प्यार करता है, और वो ये कहता है कि तुम मेरी हम्द करो। और ज़बूर नवीस हमें बारहा बार ये कहता है, यहोवा को ये पसंद है कि तुम उसकी हम्द करो। वो भला है, इसलिए तुम उसकी हम्द करो और करते रहो। ये बड़ी खूबसूरत बात है। उसकी बारगाहों में होना, खड़े होना से मुराद कायम, मुस्तहकम, जैसे रखना में खड़ा होना है। और खड़ा होने से मुराद ये बिल्कुल
स्टैंड अप होना ही मुराद नहीं है, खुदा की बारगाहों में और खुदा की हुजूरी में होना, ये इससे मुराद है। और ये बड़ी खूबसूरत बात है और मुबारक है वो जो खुदावन की बारगाहों में खड़े रहते हैं, कायम रहते हैं, मुतजलजल नहीं होते। इस ताल्लुक से मैं चंद एक हवाला जात आपके लिए और अपने लिए भी तलावत करना चाहूं खुदावन के मुकद्दस कलाम में। जबूर 27 और इस 27 जबूर की 4 आयत लिखा है, मैंने खुदावन से एक ही दरखास्त की है, मैं इसी का तालिब रहूंगा। वो क्या दरखास्त है जी? कि मैं उम्र भर खुदावन के घर में रहूं ताकि खुदावन के जमाल को देखूं और उसकी हैकल में इस्तिफसार किया करूं। ओ कितनी बड़ी उसकी ये तमन्ना थी, दरखास्त थी, एक ही बात कि मैं उम्र भर, जिंदगी भर खुदावन की बारगाहों में और खुदावन की हजूरी में रहूं। और जबूर 42 और उसकी पहली 2 आयात, ये ऐसी आयात नहीं जिससे आप वाकिफ ना हो, हम जबूर गाते भी हैं। ये जबूर लिखा है, जैसे हरनी पानी के नालों को तरसती है, वैसे ही ए खुदा मेरी रूह तेरे लिए तरसती है। क्या जबूर 27 वाली तमन्ना मैं और आप खुदावन के हुजूर कर सकते हैं? और जबूर 42 वाली कि खुदावन मेरी रूह आपकी प्यासी है, आपकी हुजूरी की। क्या हम ये कह सकते हैं? सोचने का मुकाम है। और फिर जबूर 63 उसकी पहली 3, ए खुदा तू मेरा खुदा है, मैं दिल से तेरा तालिब हूंगा। हालेलुया। खुश्क और प्यासी जमीन में जहां पानी नहीं, मेरी जान तेरी प्यासी और मेरा जिस्म तेरा मुश्ताक है। इसी तरह मैंने मकदस में तुझ पर निगाह की ताकि तेरी कुदरत और हशमत को देखूं, क्योंकि तेरी शफकत जिंदगी से बेहतर है, मेरे होंठ तेरी तारीफ करेंगे। क्या वाकई हम दिल से और रूह से खुदावंद के हुजूर ये बात कह सकते हैं? और फिर जबूर 84 और 84 जबूर की पहली 2 आयात, ए लश्करों के खुदावंद तेरे मस्कन क्या ही दिलकश है, मेरी जान खुदावंद की बारगाहों की मुश्ताक है, बल्कि गुदाज हो चली। मेरा दिल और मेरा जिस्म जिंदा खुदा के लिए खुशी से ललकारते हैं। ए खुदावंद लश्करों के खुदा। मेरे अजीज भाइयों और बहनों, हम इस बात को समझें कि जबूर नवीस बारहा बार खुदावंद की परस्तश करता भी है और दूसरों को परस्तश के लिए दावत भी देता है, इसलिए कि खुदा का नाम मुबारक है, इसलिए कि उसने अपने लोगों को रिहाई दी है, इसलिए कि उसकी सताइश करना उसको पसंद है, इसलिए कि खुदा ने अपने लोगों को इसी मकसद के लिए बनाया है। क्या मेरे लिए और आपके लिए इन 3 आयात में कोई सबक है? क्या खुदा ने मेरे लिए और आपके लिए छोटे छोटे और बड़े बड़े काम किए? वो क्या काम किए? क्या है वो काम? क्या है? हम उन कामों का दूसरों से इजहार करते हैं? और फिर क्या हम दूसरे लोगों को
दावत देते हैं कि खुदा की सताइश और उसकी परस्तिश करो। हमारी स्काइप आईडी पर हम कितने लोग हैं? अभी तो 15, 16, 17 तक भी होते हैं। अगर हम दूर के लोगों को नहीं, अपने गिराने के लोगों को ही दावत दें कि आओ मिलकर खुदावंद की परस्तिश करो, फॉलो जीसस क्राइस्ट, तो मैं सोचता हूं बेशुमार हमारे साथ लोग शामिल हो सकते हैं। और इस बात को हम चैलेंज के तौर पर लें खुदा के लिए। ये इस बात को हम आज से लें कि अपने अजीजो अकरबा, अपने रफाका, अपने हबीब, अपने दोस्तों को दावत दें कि आओ हमारे साथ मिलकर खुदावन की परस्तिश करो, क्योंकि आज की इन आयात में हम यही सीखते हैं। और अगर हमने किसी को इस तरफ माइल कर लिया तो मैं सोचता हूं कि आज की इस बाइबल स्टडी में ये आधा घंटा 40 मिनट जाया नहीं होंगे और खुदावंद को ये पसंद भी होगा। हम अपने सरों को खुदावंद के हुजूर झुकाएं। मैं मुख्तसर सी आपके लिए दुआ करना चाहूंगा। ए कादर मुतलक यहोवा पाक खुदा, आप जो मसीह यस्सु में हमारे आसमानी बाप भी हैं, ममनून हूं आज के इस कलाम के लिए। ए खुदावन हमें फजल अनायत फरमाए कि हम कभी भी आपकी बख्शिशों को भूले नहीं। याद रखें कि आपने हमारे लिए क्या क्या किया है। बस अपनी फर्माबरदारी में रहने, सताइश, परस्तिश और शुक्रगुजारी करने और हम्द करने का फजल बख्शिए और औरों को भी साथ मिलाने का। खुदावन मिन्नत करता हूं कि मुझे अपनी बारगाहों में खड़ा रहने का फजल बख्शिए और ज्यादा और ज्यादा। और मेरे इन भाइयों और बहनों को भी जो इस वक्त लाइव इन कलाम की बातों को हमारे साथ मिलकर सीख रहे हैं। और खुदावन ये भी दरखास्त करता हूं कि हमारे इन नाजरीन और सामईन में अगर कोई दुखी, बीमार, लाचार, परेशान हाल है तो अपने मुकद्दस तरीन हाथ को बढ़ाकर अपने लोगों को रिहाई बख्शिए, ताकि ये ट्रेजेडी टेस्टिमनी बन जाए और आपका नाम आपके लोगों के वसीला से जलाल पाए। हमारी दुआ को सुनिए, क्योंकि मांगते हैं मसीह खुदावंद के जलाली, मुकद्दस, फतमंद और कुदरत वाले नाम के वसीला से। आमीन एंड आमीन। खुदावंद आप सबको इस कलाम के वसीला से बरकत बख्शे। फिर मिलेंगे बशर्ते के खुदावंद की मर्जी हुई तो। तब तक के लिए खुदा हाफिज।